آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے پھر گناہ نہ کرنا. کیا ٹاپک ہے؟ پھر گناہ نہ کرنا. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جو ساتھ بیٹھا ہے اس کی طرف دونوں ایسے آپ انگلیاں کریں گے. کیسے؟ آپ ایسے، اور بتائیں اسے پھر گناہ نہ کرنا. پھر آپ دوسرے کی طرف ٹرن کریں، پھر کہیں پھر گناہ نہ کرنا. اب آسمان کی طرف اپنے چہروں کو کریں گے، اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھائیں گے اور کہیں گے خداوند میں پھر گناہ نہیں کروں گا. آمین. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ جب بیماروں پر دعا کرتا ہوں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پاسٹر انور فضل دعا کرے، اور جب میں دعا کرتا ہوں کئیوں کو شوگر ہوتی ہے، میں یہ کہتا ہوں اسپرٹ آف شوگر یسوع مسیح کے نام میں تجھے حکم دیتا ہوں اس بدن کو چھوڑ اور جاتی رہ. میں پچھلے دنوں ایک جوان پر دعا کر رہا تھا، میں نے کہا اسپرٹ آف شوگر یسوع کے نام میں اسے چھوڑ اور جاتی رہ. اور وہ جوان تڑپنے لگا اور میں دیکھ رہا تھا اور اس کو کبھی یہ اندازہ نہیں تھا. پھر میں نے کہا کہ خداوند 24 نے گناہ کیے ہیں تو اس کو معاف کر، کیونکہ گناہ کی مزدوری جو ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ موت ہے. آئیں ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے رومیو، میرے ساتھ آپ مل کر رومیو اس کا 6 باب 23 آیت، یہ صفحہ نمبر 145 پر ہے. رومن چیپٹر 6 ورس 23. سب میرے ساتھ مل کر کہیں کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. میری عزیزوں، میں دیکھتا ہوں کہ بے شمار لوگ اس غرض سے آئے ہیں کہ آج رات میں جاؤں گا، پاسٹر انور فضل دعا کرے گا تو میں کیا پاؤں گا؟ شفا پاؤں گا. میری عزیزوں، کلام فرماتا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. یعنی کہ گناہ ہم کرتے ہیں اور اس کا ویج، اس کا جو اجر ہے، گناہ جو کرتے ہیں اس کا اجر کیا ہے؟ موت. میری چیزوں، جتنے بھی گناہ ہیں ہم کرتے ہیں، اور پھر گناہ کیا کرتا ہے؟ گناہ انسان کو اسپرچولی طور پر ڈیمیج کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو کلام میں لکھا ہے خدا گناہ گاروں سے کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے. لیکن گناہ سے پیار نہیں کرتا. خدا کس سے پیار کرتا ہے؟ گناہ گار سے. خدا کس سے پیار کرتا ہے؟ سب کہیں گناہ گار سے. خدا آپ کے گناہ سے پیار نہیں کرتا. اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. میری عزیزوں، موت کون چاہتا ہے کہ اس کی موت ہو؟ کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ مر جائے، اس کی موت ہو جائے؟ بلکہ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہو، وہ بچوں کے بچے دیکھے. کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا. ہر شخص چاہتا ہے اس کی عمر کی درازی ہو، اپنے بچوں کے بچے دیکھے. کیا ایسا نہیں ہے؟ اور ابھی میں بیمار دیکھ رہا تھا، جب بیمار ہوتے ہیں تو جلدی جلدی سے آگے بھاگتے ہیں، پاسٹر صاحب دعا کریں، پاسٹر صاحب دعا کریں، تاکہ میں کیا پاؤں؟ شفا پاؤں. آج رات میں آپ کو یہ راز کی بات بتانا چاہتا ہوں. شفا اسی وقت آپ کو مل جائے گی جب گناہ آپ کی زندگی سے ریموو ہو جائے گا، جب گناہ آپ کی زندگی سے مٹ جائے گا. لیکن گناہ کیسے مٹ سکتا ہے؟ میرے عزیزو، کلام کہتا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے.
ہم مزدوری کرتے ہیں تو اس کا اجر کیا بعد میں ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ پیسے ملتے ہیں نا. کس لیے کام کرتے ہیں؟ آفس میں کام کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں. کیوں جاب کرتے ہیں؟ کہ آپ کو پیسے ملیں. اسی طرح یہ جو گناہ ہے اس سے کوئی نفع کی چیز نہیں مل سکتی. کلام لکھا ہے، خدا نے کہا کہ میں تیرے سامنے میں نے زندگی کو بھی رکھ دیا ہے اور موت کو بھی. اب چننا کس کا کام ہے؟ پاسٹر انور فضل کا کام یا آپ کا کام؟ کن کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے کہ ہم زندگی کو چنیں یا موت کو چنیں. کیا خدا چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں؟ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں؟ کیا خدا چاہتا ہے کہ مر جائیں؟ یا آپ کا والد ہے وہ یہ چاہے کہ میرے بچے جو ہیں مر جائیں؟ کوئی چاہتا ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو اس کے بچے مر جائیں، اس کے بچے کوئی اور آفت سے مر جائیں؟ کوئی نہیں چاہتا. سیم اسی طرح کلام کہتا ہے کہ جتنوں نے گناہ کیا وہ کیا ہوئے؟ خدا کے جلال سے کیا ہوئے؟ محروم ہو گئے. خدا کی پریزنس، خدا کا مسا ان کی زندگیوں سے ریموو ہو گیا. میرے عزیزو، گناہ جب آتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر کیا بدروہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا بے شمار یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں جن کے اندر بدروہیں تھی، جن کے اندر ہیپاٹائٹس اور طرح طرح کی سپرٹس ہیں. یہ ساری کیا ہیں؟ سپرٹس ہیں. لیکن خدا سپرٹس کو کیا کرتا ہے؟ کون کیا نکالتا ہے؟ کون نکالتا ہے؟ یسوع مسیح. کیا انور فضل کے نام سے سپرٹ نکلتی ہے؟ لیکن ایک نام جس کو میں جانتا ہوں جو 24 آور میری زبان پر رہتا ہے، وہ انور فضل سے بھی بڑا میرا یسوع مسیح ہے، جس کے نام سے بدروہیں بھاگتی ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، اور میرے عزیزو کمزور زور پاتے ہیں. آج رات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھر گناہ نہ کرنا. اگر آج تک آپ نے گناہ کیے ہیں تو میرے عزیزو کلام کہتا ہے بار بار گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو میں کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ پتہ ہے آپ کو کیا کروں گا؟ چیر ڈالوں گا. بار بار گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو میں کیا کروں گا؟ چیر ڈالوں گا. میرے عزیزو، یہ پھر ہم پاسٹروں کے پاس آ کر روتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا کر روتے ہیں. آج رات جتنے بھی اس وقت اس گراؤنڈ میں ہیں، آپ آئزک ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی، میری بہن، اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں، اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا چاہتے ہیں، تو پھر گناہ نہ کریں. پھر گناہ نہ کرنا. میرے عزیزو، آئیں ہم خدا کے کلام میں سے ایک سٹوری دیکھیں گے ایسے شخص کی جو 38 برس سے کیا تھا؟ بیمار تھا. آئیں خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ یوحنا اس کا 5 باب اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا. ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا. یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس کیا تھا؟ ایک حوض جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے. اس کے 5 برآمدے، ان میں بہت سارے بیمار کون سے؟ سب کہیں اندھے، لنگڑے اور پس مردہ لوگ پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا. پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا. اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو. وہاں ایک شخص، کتنے شخص؟ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا. اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں، جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے
दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे अजीजों, 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, मेरे साथ सारे मिलकर 11वीं आयत पढ़ेंगे। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया है उसी ने मुझे फरमाया, अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा चारपाई उठाकर चल फिर? लेकिन जो शिफाप आ गया था वो ना जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से टल गया था। इन बातों के बाद यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सब कहें आमीन। मेरे अजीजों, हम यहां पर देखते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैंने बड़े पास्टर्स को इस स्टोरी के बारे में बयान करते सुना कि एक शख्स, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में पहले नंबर पे तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह जब यरूशलेम को गया तो उसने क्या काम किया। उसने यरूशलेम में दाखिल होते ही ये कहा कि कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है कि मैं वहां जाऊं, जाकर खाना खाऊं। फिर हम देखते हैं या उसने ये कहा कि चलो मैं यरूशलेम में ईद मनाने के लिए आ रहा हूं, जा रहा हूं, तो मेरे चीजों में क्या करूं कि मैं जाकर वहां की बिल्डिंग देखूं कि बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। मेरे चीजों, यीशु मसीह ने हरगिज़ बिल्डिंग का इंतखाब नहीं किया। यीशु मसीह ने किसी अच्छे रेस्टोरेंट का इंतखाब नहीं किया। यीशु मसीह ने किसी रिश्तेदार के घर का इंतखाब नहीं किया। यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां पर यीशु मसीह जानता था कि यरूशलेम में एक जगह है जिसका नाम बैते क्या है? बैते हस्दा। बैते हस्दा का मतलब क्या है? फजल का घर। मेरे चीजों, यीशु मसीह जानता था कि यरूशलेम के अंदर एक ऐसी जगह है जिसके अंदर फजल का घर है, फजल का डेरा है, जिस डेरे के अंदर बीमार, लंगड़े, पुष्मुर्दा, अंधे और तरह तरह की बीमारियों से पड़े हुए लोग हैं। यीशु मसीह ने, मेरे जीसो, उस जगह का इंतखाब किया, उस जगह को चुना जहां पर लंगड़े थे, अंधे थे, पुष्मुर्दा थे। मेरे जीसो, अंधा किसी के सहारे के बगैर नहीं चल सकता। अंधे को किसकी जरूरत होती है? सहारे की जरूरत होती है। लंगड़ा खुद चल नहीं सकता, लंगड़े को भी किसी ना किसी की क्या होती है? जरूरत होती है। अभी लंगड़ों को कई दफा किस तरह उठा कर लाते हैं लोग? हाथों के साथ। फिर हम देखते हैं पुष्ट मुर्दा, कौन से? जो मरने के करीब हो। मेरे जीजो, यीशु मसीह ने उस जगह का इंतखाब किया। आज रात भी मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आज रात भी यीशु मसीह ने पास्टर अनवर फजल, मेरा नाम तो फजल है, अनवर फजल है, लेकिन मेरे जीजो, आज रात मेरे यीशु मसीह ने किसी चर्च का इंतखाब नहीं किया। उसने सियालकोट की सिटीआई ग्राउंड का, मेरे जीजो, आपके लिए इंतखाब किया है, आपको इस जगह पर बुलाया है। वो आज रात अनवर फजल से मिलने नहीं, आपसे मिलने आया है।
ताकि आप मेरे चीजों वो यीशु मसीह, मैं देखता हूं कि उसने पहले नंबर इंतखाब सोच समझ कर किया कि ये जगह ठीक है, और वहां पर हम देखते हैं जब गया और भी बीमार होंगे, लेकिन कितने शख्सों का इंतखाब किया? किसी का? किसका? एक शख्स का। यीशु की निगाह में एक शख्स की कीमत बहुत ज्यादा है। वो यीशु मसीह उसको 38 बरस से देख रहा था, क्योंकि कलाम में लिखा है, मैं तेरे मांगने से पहले ही क्या करता हूं? मैं तेरे मांगने से पहले ही तुझे क्या करता हूं? जानता हूं तुझे किस चीज की जरूरत है। वो जानता था कि वो 38 बरस का बीमार कहां बैठा हुआ था? कहां बैठा हुआ था? हौज के किनारे। शायद उसने अपनी टांगें भी किसी ना किसी तरह से हौज के पास ले आया हो, और इतनी 38 बरस, अगर 38 बरस कोई बीमार रहे तो उसकी हालत कैसी हो जाती है? बेड पर पड़े कैसी हो जाती है? शायद उसको नीचे बेड सोल हो गए हो, और मेरे जीजो उसको नीचे से और तरह तरह की बीमारियों ने जकड़ लिया हो, उसका बदन कितना लागर हो चुका था। लेकिन यीशु मसीह उस शख्स के पास पहुंचा, और यीशु ने उससे पूछा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो उसने क्या कहा? उसने कहा हां, लेकिन मेरे पास कोई शख्स नहीं है जो मुझे पहले पानी के अंदर क्या करे? पानी के अंदर उतार दे। मेरे पास ऐसा शख्स ही नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जो शख्स मेरे पास खड़ा है, जो शख्स मेरे सामने बातें कर रहा है, वही तो मालिक है, मुर्दों को जिंदा करने वाला है, अंधों की आंखों को खोलने वाला है, लंगड़ों को चलाने वाला है। आज रात मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज रात अनवर फजल की तरफ ना देखें। अपनी निगाहें उस जिंदा खुदा की तरफ लगाएं जो जमीन आसमान का मालिक, क्रिएटिव, पैदा करने वाला है। वो मेरी और आपकी जरूरत को जानता है। वो आपके साथ खड़ा है। वो आज रात आपके पास आया है। क्या मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे अजीज, तुझे किस चीज की जरूरत है? आज रात अगर आपको शिफा की जरूरत है तो अनवर फजल की तरफ ना देखे। वो शख्स पानी की तरफ देख रहा था कि कोई शख्स आए मेरी मदद करे। आप भी कई दफा देखते हैं कि शायद कोई शख्स मुझे पास्टर अनवर फजल के पास ले जाए। बेशुमार गवाहियां सुनी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बीवी को व्हील चेयर पर बिठाया, मैं अपनी बीवी को व्हील चेयर पर बिठाकर पास्टर अनवर फजल के पास लाहौर ले गया, और लाहौर जब लेकर गया, पास्टर अनवर फजल ने दुआ की। अभी मैं गवाही सुन रहा था। मकसद क्या है कि खुदा का खादम दो चंद इज्जत के लायक है, लेकिन सबसे बड़ी इज्जत के लायक मेरा यीशु मसीह है। मैं चाहता हूं कि आप पास्टर अनवर फजल के पीछे ना दौड़ें, आप उसके पीछे दौड़ें जिसके पीछे अनवर फजल दौड़ता है। वो मेरा बाप है, उसका नाम यीशु मसीह है। आई लव यू जीसस। मेरे यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। आई लव यू जीसस। सब कहें आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। साथ वाले को बताएं आई लव यू जीसस। पूछे साथ वाले को, क्या तू यीशु से प्यार करता है? आगे वाला कहे यस, यस। कितने यस वाले हाथ दिखाएं। जीसस लव यू। तुसी शेर दे यीशु दे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को वो कहने लगा कि मेरे पास तो कोई ऐसा शख्स नहीं है। हो सकता है आपके पास भी कोई ऐसा शख्स ना हो जो आपको अनवर फजल के पास ला सके, लेकिन एक शख्स है जो भी मैंने आपको बताया था। यीशु ने कहा मैं जाता हूं, तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूं, जो अब से अब तक तुम्हारे क्या क्या रहेगा? साथ रहेगा।
अनवर फजल नहीं, रूहुल कुद्दस। सब कहें रूहुल कुद्दस। सब हाथ उठा कर कहें होली स्पिरिट। कौन साथ रहेगा? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट कौन है आपको पता है? यीशु मर कर जी उठा है, उसकी स्लीब, बाबा जी स्लीब उठा कर दिखाए, उसकी स्लीब आप देख सकते हैं, उसकी स्लीब खाली है, वो स्लीब पर नहीं है, वो मर कर जी उठा है। और जो जिंदा है वो हमेशा जिंदों की क्या करते हैं? क्या करते हैं? मदद करते हैं। उसने कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूं, जो अब से अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। आपको किसी ने आकर छुआ था नीचे? आप मुझे बताएं, जो नीचे स्लेन हुए हाथ उठाएं। आपको किसी ने छुआ था? किसने छुआ था? अनवर फजल के हाथ ने नहीं, यही हाथ आप आज साथ लेकर जाएं। यीशु मसीह का हाथ जो आपकी लंगड़ी टांगों को चला सकता है। आप मुर्दा हैं मेरे जो मरने के करीब हैं, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, कैंसर है, हेपेटाइटिस है और तरह तरह की बीमारियां हैं। आज रात मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उसने कहा हां, लेकिन कोई शख्स नहीं है। मैं सोच रहा था कि यीशु कहता होगा, इसको यह नहीं पता कि मैं कौन हूं। मेरे जीजो, हम यीशु मसीह के पास आए हैं और अक्सर लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह मेरे जीजो वो शख्स है जो अंधों की आंखों को खोलता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, बीमारों को अच्छा करता है और हमेशा की जिंदगी का लोगों को वारिस बनाता है। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह है। हम देखते हैं कि खुदा किसी की हिलाकत नहीं चाहता। क्या चाहता है? आपका बाप हो और ये कहे कि बच्चे मर जाएं, बीमारी में मर जाएं, क्या बाप कोशिश नहीं करता उसको बचाने की? कितने डॉक्टर्स के पास लेकर जाता है और क्या कुछ बेचना पड़े, और बच्चों के लिए लोग अपने घर बेचकर डॉक्टरों पर लगा देते हैं। और इस शख्स को हम देखते हैं 38 बरस एक जिंदगी का हिस्सा है। 38 साल। कितनों की उम्र 38 साल है? जरा मुझे हाथ दिखाएं। 38 वर्ष वाले हाथ उठाएं। 38 वर्ष आप खड़े हों। 38 वर्ष वाले, खुदा आपको बरकत दे। 38 वर्ष वालों को खुदा कहें कि खुदा मुझे बरकत दे, मेरी उम्र को दराज कर। आमीन। मेरी दुआ है कि ये 38 वर्ष का एक अरसा होता है। आप देखें कि 38 वर्ष का बीमार, उसका जिस्म कैसा होगा। अब भाई आपका नाम क्या है? जरा सामने आए जल्दी से। आपकी 38 वर्ष है ना, जरा सामने आए। आपका नाम क्या है? तारिक। तारिक भाई, आप क्या करते हैं? मैं कारपेंटर हूँ। कारपेंटर है। बड़े खूबसूरत आप कारपेंटर है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। ये 38 वर्ष के हैं। और कितना आपका वेट है? 100। मैं सोचता हूं कि जो 38 वर्ष का बीमार होगा, आपके ख्याल में 38 वर्ष का बीमार बैठा बैठा कितना कुछ का वजन हो गया होगा? यही कोई 20-25 किलो। 20-25 किलो। इतना कमजोर हो गया होगा। हाँ जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब देखें कि एक शख्स ताकतवर है, जीता है, जोरावर है, 38 वर्ष का है और कितना इसके अंदर वेट है? 100 किलो। और वो शख्स जो हिल भी नहीं सकता, और किस पर बैठा हुआ है? किस पर बैठा हुआ है? चारपाई पर। और हम देखते हैं कि हौज पास ही है, लेकिन वहां पर कौन आकर हौज को हिलाता है? कौन हिलाता है? फरिश्ता। कि यीशु मसीह ने उस शख्स को पास जाकर उसको देखा होगा कितने प्यार से, बड़े प्यार से। या मैं देख रहा हूं बड़े प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं, बीमार हैं। मेरी दुआ है खुदा आपको, भाई आपके बेटे को भी खुदा शिफा दे। आप मेरी बहन
आपको भी खुदा शिफा दे। और इसी तरह जितने भी और बैठे हैं, यीशु मसीह ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा और यीशु को उस पर क्या आया? तरस आया। यीशु ने जब उसको प्यार से देखा तो वह तरस से भर गया। और आज रात भी यीशु मुझे और आपको देख रहा है। उसकी आंखें एक एक शख्स पर हैं, एक एक भाई पर, एक एक बहन पर, एक एक दिल पर उसकी निगाह है कि मेरे बेटे को आज रात क्या जरूरत है, मेरी बेटी को क्या जरूरत है, मेरे इस भाई को क्या जरूरत है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जानता है। यीशु ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, उठ और क्या कर, उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। तो वो क्या हुआ? उठ गया। अब 38 वर्ष का बीमार, सोचिए जरा कि जो हिल भी नहीं सकता, हौज तक पहुंच भी नहीं सकता, यीशु मसीह के नाम के वसीला से यीशु ने कहा उठ। उसके अंदर क्या आ गई? ताकत। और उसने क्या किया? अब बैठा हुआ था तो क्या हुआ? उठ खड़ा हुआ। मेरे जीजों, वो अपनी चारपाई को उठाकर चलने फिरने लगा। आज रात मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आज रात आपको भी मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरा यीशु मसीह मोजज़ात का खुदा है, जिंदा खुदा है। वो आपकी सारी जरूरतों को जानता है। आपके पास जॉब नहीं, वो जानता है। घर नहीं, वो जानता है। बच्चे नहीं है, वो जानता है। आपके पास, मेरे जीजो, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, यीशु जानता है। लेकिन आज रात में आपको यह कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जब उसको शिफा दी, फिर उसके बाद वो चला गया और फौरन कहां पहुंच गया? खुदा की हैकल में, प्रेजेंस ऑफ गॉड में चला गया। और यीशु मसीह को भी पता था कि मेरा पुत्र किथे गया है। और यीशु मसीह भी हैकल के अंदर उसे मिले। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? उसने कहा, अब तू तंदुरुस्त हो गया है, अब तू गुनाह ना करना। अब तू क्या हो गया है? तंदुरुस्त हो गया है। अब तुझे शिफा मिल गई है। अब तू क्या करना? गुनाह ना करना। उसकी मुलाकात कहां हुई? हैकल के अंदर। इसका मतलब उसने सबसे पहले चुनाव किसका किया? हैकल का। आज रात आपको यह बताना चाहता हूं, आप भी, खुदा अगर आपको शिफा दे, आप सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करें और फिर उस चर्च का इंतखाब करें जो भी आपके इलाके में है। आप वहां पर जाएं, पास्टर को जाकर मिलें और उससे क्या करें? रफाकत रखें, ताकि फिर आप गुनाह के अंदर ना चले जाएं। कलाम में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है। और गुनाह, यीशु ने क्या क्या कहा कि फिर तू गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि पहले से भी तुझ पर ज्यादा आफत आए। ऐसे ही होता है ना। लेकिन लोगों का क्या हाल होता है? मेरे पास आते हैं, दुआ कराते हैं, शिफा हो गई, फिर कहते ने चलो हुण की सानू जरूरत है जान दी। ऐसे ही होता है ना। जब कोई बीमार पड़ता है, पूछे, ओ भाई जी मैनू की जरूरत है दुआ दी? और मेरा सियालकोट च ते अपना बिजनेस है, मेरी ते अपनी फैक्ट्री है, पादरियां दी की जरूरत है मैनू? पादरी तो हदिया मंगते रहिंदे, इन्हां दा काम की है? मैं दिमाग खराब है मेरा, मैं इन्हां को जावां? ते जदों फैक्ट्री नहीं हुंदी, फैक्ट्री भी जांदी रहिंदी ते घर वाले भी बीमार, फिर कहणगे ओ यार कोई अच्छा जिहा मैनू पास्टर लभ जाए, कोई अच्छा जिहा खुदा दा खादम लभ जाए। फिर पादरियां दा रुख। मेरे जीजो, खुदा नहीं चाहता कि हम गुर्बत के अंदर रहे, खुदा नहीं चाहता हम बीमारी के अंदर रहे, खुदा नहीं चाहता हम बदरुओं के अंदर फंसे रहे। क्या जहां यीशु मसीह होगा बदरुएं रह सकती है? उसने कहा, तुम खुदा का क्या हो? क्या हो? तुम खुदा का मकदस। मकदस कहां पर है? ए मकदस तुहाडा बदन है।
کہ چرچ بلڈنگ کے اندر خدا نہیں رہتا, خدا انسان کے کہاں رہتا ہے؟ دل میں رہتا ہے. اگر دل میں گناہ ہوگا, بدی ہوگی, تو پھر کون رہے گا؟ یسوع. کیا خدا پاک جگہ پر رہتا ہے یا ناپاک جگہ پر؟ کس جگہ پر؟ پیچھے والے مجھے بتائیں کون سی جگہ پر خدا رہتا ہے؟ پاک جگہ پر. اور کہیں میرے دل میں گناہ چھاڑ دیو گے, بیماری آپ ہی چھاڑ جائے گی, بدرو آپ ہی نکل جائے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور سٹوری شارٹ میں کروں گا, ایک اور سٹوری ایک عورت کی جو عین گناہ میں کیا ہوئی تھی. یونا 8 باب 11 آیت. یسوع نے اس سے کہا جا پھر گناہ نہ کرنا. میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی عورت جو گناہ کے اندر پکڑی گئی, اور لوگ اسے کیا کہنے لگے؟ اس کو کیا کرنا چاہتے تھے؟ ਸੰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਥੇ. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭੇ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਵੱਟਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ. ऐसे होता है कि नहीं? कलाम में लिखा है अच्छा मालिक अच्छे खजाने से कौन सी चीजें निकालता है? अच्छी. और बुरा क्या निकालेगा? हम क्या करते हैं? मौका मिल जाए हम भी किसी को छोड़ते नहीं है कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज करने की बजाय दूसरों को किसकी आंख से देखें? किसकी आंख से? यीशु की आंख से. और यीशु ने उस औरत को क्या कहा? उसने कहा कि जा फिर गुनाह ना करना. कलाम में लिखा है कि वो नीचे बैठकर क्या लिखने लगा? उसने कहा वो पत्थर मारे जिसने गुनाह नहीं किया. और फिर कलाम में लिखा है वो नीचे झुककर लिखने लगा. और जब लिखने लगा और फिर चंद मिनटों के बाद बारी बारी सब चले गए. फिर वो उसने उस औरत की तरफ देखा, उस औरत की तरफ देखा और उससे कहा कि जा बेटी तू फिर गुनाह ना करना. और मेरे अजीजों, आज रात हमें भी यीशु की आंख से दूसरों को देखने की जरूरत है और हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है. क्या आप चाहते हैं तौबा करना? कितने लोग समझते हैं कि गुनाह की मजदूरी जो है मौत है? गुनाह की वजह से खुदा क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है. कलाम में लिखा है खुदा के रूह को रजीदा ना करो. अगर आपसे खुदा का रूह रजीदा है तो मैं आज रात आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप बीमार हैं आज रात बीमारी के लिए पहले दुआ ना करें, पहले आप खुदा से कहें कि खुदा मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं. कलाम में लिखा जो अपने गुनाह का इकरार करता है उस पर खुदा की क्या होगी? क्या होगी? सब कहें रहमत. क्या होगी? खुदा की रहमत. और जो गुनाह को क्या करता है? तर्क कर देता है, उस पर क्या होगी? रहमत होगी ना. ते जड़ा नाल ही बन्नी फिरे, नाल गुनाह भी बन्ने है कि नाल यीशु नूं ही कोशिश करते रखने की, तो ऐसा नहीं हो सकता. कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक रूह दी तलवार एक बदी दी. आप कौन सी बांधे फिर रहे हैं? आज आपने सोचना है. यीशु ने कहा जा फिर गुनाह ना करना, फिर गुनाह ना करना. आज रात मेरा टॉपिक क्या था? फिर गुनाह ना करना. तो आए अपने सरों को झुकाएं. आज रात सब अपने सरों को झुकाएं. चंद मिनटों के लिए मैं आपको मौका दूंगा कि आप सोचना शुरू करें कि मैंने कौन सा गुनाह किया है, खुदा मुझसे रजीदा हुआ है. अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं, टीबी के पेशेंट हैं, आप हेपेटाइटिस है, शुगर है और तरह तरह की बीमारियां हैं, खुदा के आगे कहें कि खुदा देख तेरी आंखें देख रही हैं. अगर मैंने तुझे तेरे रूह को रजीदा किया है, मैं अनवर फजल से नहीं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ. अगर आप आज तौबा करना चाहते हैं, मसीह को दिल देना चाहते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, आप अपना हाथ दिखाएं, मैं आपके लिए दुआ करूँगा ताकि खुदा
आपको माफ करे और बहाल करे। आप पर खुदा का रूल कुदस ठहर जाए। आपकी दुआएं जो रुकी हुई हैं वो बहाल हो जाएं। बरकतें जो रुकी हुई हैं बहाल हो जाएं। यीशु ने कहा कि जा फिर गुनाह ना करना। मेरे भाई मेरी बहन जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं अपनी जगह पर खड़े हों। सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि जब एक गुनाहगार तौबा करता है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। आप इकरार करें खुदा के आगे, कहें खुदा बाप मैं तेरे पास आता हूं, मैंने तेरे कलाम को सुना है और मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं और अपने गुनाह को तर्क करता हूं। तो मुझे माफ कर, मैंने तेरे रूह को जीदा किया है। आज के बाद तो मुझे अपना बेटा बना ले ताकि आइंदा की जिंदगी पूरे तौर पर मैं तेरे साथ गुजारूं। तू मेरा खुदा हो और मैं तेरा बेटा हूं। और मैं आज रात ऐलान करता हूं कि मैं हाथ उठाकर पूरे तौर पर अपनी नहीं बल्कि तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। तू मुझे कबूल कर और जैसा तू चाहता है वैसा इस्तेमाल कर, मसीह के नाम में आमीन। आप मुबारक हैं और आपके गुनाह माफ हुए। खुदावंद आपको बरकत दे। पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सारा जलाल दोनों हाथ उठाकर फुली तौर पर कहें कि खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तूने मेरी दुआ को सुन लिया है, तूने मुझे माफ किया है। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।